हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। किस टाइप से कैसी पढ़ाई चल रही है। ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म का है इसमें एडजस्ट होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट व्हाइल वाचिंग दीज वीडियोस प्लीज कीप योर नोटबुक एंड पेन विद यू एंड start writing in your notebook and start preparing your own notes. Otherwise what will happen while watching these YouTube videos, if you are lying on your bed, and this will not work. So please, it's my humble request to all of you that while watching these videos, please you have to assume that you are sitting in a class, and in that manner you need to write notes in your notebook. Okay, so last time we were discussing about electric field lines. We have discussed about the properties of electric field lines. In next 3 to 4 lecture we are going to complete this first chapter, and after that we will discuss various numerical problems which are based on this chapter. So now today we are going to start new topic, that is electric dipole and electric dipole moment. And in this topic we will also calculate electric field intensity at a point due to electric dipole. Okay, so let us start today's topic, electric dipole. Electric dipole. Di means two, dipole means two poles. In case of magnet we have two poles. One is the north pole, another is the south pole. Similarly in electrical system we can assume two charges which are equal in magnitude but opposite in nature, and they are separated by some distance. That system is called as electric dipole. Okay, so suppose I have 2-point charge. This is my minus q charge and this is my plus q charge. Okay, and let us assume that these are separated by some distance. So basically this system is known as electric dipole. So we can give definition of electric dipole. So definition of electric dipole. Electric dipole, a system consisting of two equal and opposite point charges separated by a small distance. A small distance is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो देखिए, अगर अपने पास में 2-point चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, और दोनों की नेचर अलग है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव है, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस पे अगर वो मेंटेन रखे हुए हैं, तो इस टाइप का जो ये सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. जैसे आपका मैग्नेट के केस में आपका एक नॉर्थ पोल होता है और उससे कुछ डिस्टेंस पे ये आपका जो है वो साउथ पोल. अगर मैग्नेट को अगर अपन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से अपन ड्रॉ कर सकते हैं. ये मैग्नेट, एक बार मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, तो इसमें ये डाइपोल होते हैं. उसी टाइप से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो अपन एक सिस्टम को अज्यूम करते हैं जिसमें अपने पास 2-point चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है, इस टाइप का जो सिस्टम होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर अपन एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने से पहले इसका कुछ बेसिक नॉमेनक्लेचर है, उसको अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर किस टाइप का नॉमेनक्लेचर होता है. ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें आपके 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ओके, अब मान लीजिए कि इनका जो बीच का ये इसका मिड पॉइंट है, दिस मिड पॉइंट इज O, मिड पॉइंट, एंड दिस मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल. दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल. जो आपके दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल. एंड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दिस लाइन इज नोन एज axis of dipole. Axis of
dipole, okay, and this midpoint is basically the center, and this line is also the line which is along the axis. That line is known as axial line. So this line, basically this line, if I draw extend like this line basically known as axial line. Axial line means a line which is along the axis of electric dipole. If I draw one more line which passes through its center and perpendicular to its axis, then that line is known as equatorial line. Suppose I'm drawing a line, it is passing through, this is my line, okay. So this line, this is the line, this line is perpendicular to axis of dipole and it is passing through center of dipole. This line is known as equatorial line. Equatorial line, okay. So this is axial line which is along the axis. This is equatorial line which is perpendicular to its axis and passes through its center, and midpoint is known as center. Suppose distance between this minus q charge and center is a, and this would also be a because it is center point. So the distance between these two charges would be 2a. Now we are going to define next physical quantity, that is dipole moment. Dipole moment is what? Dipole moment is nothing but it is the product of magnitude of any one of the charge and distance between the charges. So dipole moment, this is what? It is product of कोई भी एक चार्ज अपन ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हो गया q, okay, and multiplied by distance between the charges. Distance would be 2a. So this is q into 2a. This is known as dipole moment and it is denoted by this p. We use the symbol p. So p is equal to q into 2a. P is known as dipole moment. This dipole moment is also a vector quantity. देखिए ये जो आपकी displacement है basically अगर अपन लें इसके बीच का, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में. P is equal to q into this is q 2a. This is simple multiplication. This is 2a. Okay. So this is basically the vector form of this dipole moment. So here we can say this dipole moment is basically a vector quantity. Vector quantity. Okay. And you can give definition of dipole moment. It is the product of magnitude of either of charge and distance between them. This is basically dipole moment, okay, and it is a vector quantity. If it is a vector quantity, it will have direction. So how to represent the direction of dipole moment? Direction of dipole moment is taken from negative charge to positive charge, from negative to positive. So this would be the direction. Basically, if I write this is A, this is B, so its direction will be along A to B. This is called as. So in this direction, if dipole moment is represented by P, so in this direction I can write unit vector from A to B would be what? P cap. So direction, this is very important. Direction of dipole moment, direction along negative to पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होती है. इसका यूनिट, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है इसकी अपन यूनिट लिख सकते हैं Q, दिस इज चार्ज, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम, दिस इज कूलाम, एंड दिस इज द डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. सो कूलाम इनटू मीटर वुड बी यूनिट ऑफ dipole moment. Dipole moment is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं. इसका ये आपका चार्ज का है डायमेंशनल फॉर्मूला. जो भी अपन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको लिखना है. ये आपके होमवर्क के लिए है. 11th क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है. सो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट. अब देखिए डायपोल मोमेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है. केमिस्ट्री के अंदर भी डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा. दो टाइप के केमिकल बॉन्डिंग में आपने दो टाइप के जो है वो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे. पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सेकेंड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स
HCl, इसके एग्जांपल्स जो है पोलर मॉलिक्यूल्स के आपके हो जाएंगे HCl, NaCl, ओके, H2O, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होंगे CO2, ओके, एंड दिस इज CH4. दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो उसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसके बीच की कुछ अगर डिस्टेंस होगी तो वो आपका होगा पोलर मॉलिक्यूल्स. इफ center of positive charge coincide on center of negative charge, in those kind of molecules are known as non-polar molecules. अगर सेंटर के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कुछ डिस्टेंस पे हैं तो सीधी सी बात है उस टाइप का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको अपन बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स. और अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नॉन जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस केस में उस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अपन कैपेसिटेंस के चैप्टर में थोड़ा बहुत इसको और भी स्टडी करेंगे. 11th क्लास में आपने डिटेल में स्टडी किया होगा. अभी इसका ज्यादा अपने स्कोप नहीं है. अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर अपन ज्यादा फोकस करेंगे आज के लेक्चर में. तो ये बेसिक आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स में यही ध्यान में रखना है कि जो आपका पॉजिटिव जो है और नेगेटिव जो चार्ज है उन दोनों का जो सेंटर के बीच की कुछ डिस्टेंस होती है तभी ये आपका डायपोल. इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है परमानेंट. फिर अपन जो अलग अलग टाइप के पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में कैपेसिटेंस में स्टडी करेंगे कि जब आपका नॉन पोलर आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसको अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल तो किस प्रकार से डायपोल मोमेंट अलाइन वगैरह हो जाएगा. वो सारा का सारा डिटेल डिस्कशन अपन आगे करेंगे. इस चैप्टर के अंदर अपने को ये बेसिक जो है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस they are separated by some distance, that is called as electric dipole. Di means two poles, दो पोल हो गए, एक आपका नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल. और ये जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. ये बात आपको यहां तक ध्यान में रखनी है. तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है. अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं. So our next topic will be electric calculation of electric field intensity. तो इसका नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया कि इसमें एक एक्सियल लाइन होती है, एक आपकी इक्वेटोरियल लाइन होती है. जो एक्सिस के अलोंग लाइन होती है वो आपकी एक्सियल लाइन हो जाएगी और एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वो आपका इक्वेटोरियल लाइन होगा. देखिए अपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, उसका अपने डेरिवेशन किया E = kq/r². आज हम लोग नेक्स्ट अपना ये जो छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी. वो पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पे भी लोकेटेड हो सकता है और वो आपका पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे भी लोकेटेड हो सकता है. तो अपन ये छोटे छोटे दो डेरिवेशन है. फर्स्ट केस में अपन जो है पॉइंट को एक्सियल लाइन पे लेंगे और सेकंड केस में अपन जो आपका पॉइंट होगा उसको इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे और छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. सो आपका फर्स्ट यहाँ पे अपन जो सब टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से कर रहे हैं कैलकुलेट? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किस पॉइंट पे? एट अ पॉइंट on axial line, at a point on axial line. axial line पे अगर आपका कोई पॉइंट है उस पे जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको कैलकुलेट करते हैं. बहुत इजी है. सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रिक जो डायपोल है उसको अज्यूम कर रहे हैं. मेरे पास ये आपका -q चार्ज है. सपोज दिस इज -q चार्ज, ओके, एंड दिस इज -q. इससे कुछ डिस्टेंस पे आपका जो है यहाँ पे ये +q चार्ज है. बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ये इनका सेंटर है. दिस इज सेंटर, दिस इज O. सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट. ओके, दिस इज माय इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सपोज दिस डिस्टेंस बिटवीन O and A is this is a small a and this distance is also small a. दिस इज माई इलेक्ट्रिक डायपोल. दो पोल हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव.
मुझे इसकी जो एक्सियल लाइन है, देखिए एक्सियल लाइन कौन सी होगी, जो एक्सिस के अलोंग है, ये इसकी एक्सिस के अलोंग, देखिए ये वाली लाइन, ये इसकी एक्सियल लाइन होगी, दिस इज एक्सियल लाइन। ठीक, एक्सियल लाइन पे अगर कोई पॉइंट है, सपोज एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट मेरा ये P है, और इस P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक, P को अपन अज्यूम कर लेते हैं कि P की इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सेंटर है, उस सेंटर से जो इसकी जो डिस्टेंस है P की, ये सेंटर ले लिया अपन ने, ये सेंटर। ठीक, सेंटर से इस P की जो डिस्टेंस है उसको अपन R अज्यूम कर रहे हैं। We are assuming a point on axial line of electric dipole which is located at a distance small r from the center of electric dipole। देखिए P की लोकेशन को हमेशा अपन सेंटर से जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक, तो यहां से अपन ये जो डिस्टेंसेस जो है उसको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये अगर डिस्टेंस आपकी r है तो इस ये आपकी B और P के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, बेसिकली ये कंप्लीट r है। इस r में से अगर ये a माइनस हो गया तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो आपकी r माइनस ए होगी। ओके, दिस इज r, दिस इज a, तो यहां से a से जो p की डिस्टेंस होगी ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से जो पॉइंट ले रहे हैं उसको सेंटर से आपको उसकी लोकेशन बतानी है r डिस्टेंस पे। अब इस p पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस डायपोल की वजह से। ठीक, पॉइंट चार्ज अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज होता है और उससे अगर r डिस्टेंस पे हमको बहुत अच्छे से क्लियर है, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज q है और इससे अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है तो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो kq अपॉन r स्क्वायर होती है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अगर ये नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अपन इस इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होगा इसमें दो चार्ज है, एक आपका माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। दोनों की वजह से सेपरेट सेपरेट अपन यहाँ पे पी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और फिर ये अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है ई, इस वजह से इसका फिर अपन वेक्टर सम कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन यही लिखना है कि अज्यूम एन इलेक्ट्रिक डायपोल in which minus q and plus q charges are separated by a small distance, this is 2a. We have to calculate electric field intensity at point P which is located on axial line at a distance small r from the center of electric dipole. Okay, now first we calculate electric field intensity at point P due to plus q charge, and then we will calculate electric field intensity at point P due to minus q charge. सो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताइए अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसको मैं इसका नाम दे रहा हूं मैं E1, ओके, या इसको EB भी बोल सकते हैं, E1 भी बोल सकते हैं। ठीक, अब बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस है इसकी। अगर r डिस्टेंस पे तो kq बाई r स्क्वायर होता है, ये प्लस q, ये डिस्टेंस है r माइनस a, तो बताइए कितनी होगी, kq अपॉन r माइनस a स्क्वायर। ठीक भैया, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा r माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग, ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द, ये देखिए ये मैं इसको शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये इसकी जो डायरेक्शन को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं ये इस टाइप से होगा, ये आपका ये E1 है आपका, और ये अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज है, तो अलोंग BP में लिख सकता हूं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग BP होगी। ये आपका E1 कैलकुलेट कर दिया इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब मैं इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, उसको मैं E2 लिख रहा हूं। E2 इज इक्वल टू वही के, ध्यान में रखिए जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते वक्त
जो चार्ज है उसका भी केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन आपको नहीं लिखना है। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये देखिए नेगेटिव साइन है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो क्यू होगा। अब डायरेक्शन पीछे पर शो कर देंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप चाहे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें Q1 Q2 को विदाउट साइन पुट करना है, क्योंकि जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 का भी मैग्नीट्यूड ही रखना है, विद साइन उसको पुट नहीं करना है। और यहां पे इस केस में भी ये ध्यान में रखना है। तो ये K और ये मैं इसका साइन नहीं ले रहा हूं, K Q इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, अपॉन डिस्टेंस बताइए, यहाँ इस माइनस Q से और P के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये R प्लस A है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, इसलिए ये डिस्टेंस R प्लस A है, इसलिए ये हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, देखिए ये P पॉइंट पे ये आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, ये आपका टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये आपका इस टाइप से होगा, ये टुवर्ड्स द चार्ज, ये मेरा आपका हो गया E2। तो ये मैंने E1 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, E2 का मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज और इसकी वजह से होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज। अब आपको P पॉइंट पे दोनों की अलग अलग वजह से निकाल दिया, P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए दो वेक्टर है, वो आपके एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसका रिजल्टेंट अपन किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, दो फोर्सेज मान लीजिए आपको दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है ये 4 न्यूटन का, इधर का आपको 3 न्यूटन का, तो अपन क्या करते हैं, ये आपका P माइनस क्यू करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, 4 माइनस 3 यानी 1 न्यूटन हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रिजल्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज E1, दिस इज E2, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़ा आपका कौन सा है, ये R माइनस ए, ये वैल्यू आपकी जो है वो अगर कम है, R माइनस ए सीधी सी बात है कम होगी, तो ये E1 ज्यादा होगा, और ये R प्लस ए ये डिस्टेंस ज्यादा है तो E2 कम है, यानी E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब रिजल्टेंट अपन फाइंड आउट करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, उसको अपन लिखते हैं ये आपका, ये रिजल्टेंट एक्सियल, ये एक्सियल पॉइंट पे आ रही है, ये रिजल्टेंट अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो E एक्सियल वुड बी इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि यहां पे देखिए ये अलोंग द लाइन एक दूसरे के ये अपोजिट है, इस डायरेक्शन में E1 है, इसमें E2 है, तो इन दोनों का जो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका E1 माइनस E2। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और E एक्सियल इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, दिस इज KQ अपॉन R माइनस A स्क्वायर, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, दिस इज KQ अपॉन R प्लस A स्क्वायर। ओके, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं, और E एक्सियल इज इक्वल टू, देखिए इसके अंदर अगर अपन देखें तो आपका जो एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, एलसीएम है R माइनस A स्क्वायर एंड दिस इज R प्लस A स्क्वायर। इसमें KQ, दोनों में से KQ को अपन कॉमन ले सकते हैं, ये आपका KQ को कॉमन ले लीजिए, मैं सीधा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए R एलसीएम हो जाएगा, इस एलसीएम से अगर R माइनस A स्क्वायर डिवाइड करोगे तो पीछे बचेगा आपका R प्लस A स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R प्लस A स्क्वायर, ये माइनस, यहाँ से इस एलसीएम में से R प्लस A स्क्वायर डिवाइड करोगे तो पीछे रहेगा R माइनस A स्क्वायर, तो माइनस R माइनस A स्क्वायर। ये बहुत बेसिक छोटी सी कैलकुलेशन है भैया, KQ को मैंने पहले ही आपका यहाँ पे कॉमन ले लिया है और ये एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। E एक्सियल इज इक्वल टू दिस इज KQ, ओके, डिवाइडेड बाय ये R माइनस A और ये R प्लस A, देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, R माइनस A R प्लस A और दोनों का होल स्क्वायर। अब आपका नोमिनेटर में देखिए क्या होगा, दिस इज A प्लस बी होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, माइनस की जगह माइनस, ध्यान रखना अगर ब्रैकेट नहीं रखोगे तो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। R A माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी स्क्वायर इज वॉट, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, अब इसको अपन थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ये वाला आपने यहाँ से थोड़ा पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे बाकी की जो कैलकुलेशन है उसको कर रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डायग्राम को मैं रहने देता हूँ, मैंने E1 E2 कैलकुलेट करके और रिजल्टेंट E एक्सियल को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू दिस इज माई KQ
open these two brackets, then we will have r square plus a square plus 2ar. This minus is multiplied inside, minus r square minus a square, and this minus and minus become plus 2ar divided by, this is a minus b and a plus b. A minus b, a plus b is what? A square minus b square. So I can write r square minus a square, and there is a square, so this I'm writing square. Okay, and r square and r square get cancelled, a square and a square get cancelled, this 2ar and 2ar, it becomes 4ar. So we can write E axial is equal to, this is k q into, this is 2ar and 2ar, 4ar divided by, this is what? R square minus a square whole square, r square minus a square, this is r square minus a square whole square. Now we will make an assumption here that this point is far located, means this distance r is very greater as compared to this distance small a. यानी दोनों जो आपका डायपोल के अंदर ये assume करते हैं कि जो तो यहां से ये ई एक्सियल की जो वैल्यू है के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब देखिए यहां पे अपने एक अजम्पशन लेते हैं कि ये मेरी जो पॉइंट है वो दैट इज वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस डायपोल, मतलब आर की जो वैल्यू है वो ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. सो इफ आर इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू ए, सो आर स्क्वायर विल बी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू, अगर आर की वैल्यू ए से ज्यादा होगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी ए स्क्वायर से. इस केस में वी कैन राइट दैट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑलमोस्ट बी इक्वल टू व्हाट? आर स्क्वायर. So from here I can write E axial is equal to, this is KQ into 4AR divided by, in the place of R square minus A square I am writing R square, and there is a square, this square I am writing here. Now further we solve this. This is E axial, so E axial, this is equal to what? This is KQ, and this 4a it can be written as 2a multiplied by 2r divided by this r square whole square, this is r power 4. I have written 4a as 2a into 2 because we know that q into 2a is what? Dipole moment p. So in the place of q into 2a we can write p. Okay, from here this get cancelled, it becomes r cube. So finally, and since q into 2a this is equal to p, dipole moment, so we can write E axial is equal to, in the place of k I am writing k, this q into 2a is what? P, this is 2 divided by r cube. So E axial is equal to 2 kp upon r cube, where this p is what? Dipole moment. This is the magnitude of electric field intensity at a point on axial line due to electric dipole. If we want to write it in vector form, then we can write E axial vector is equal to 2 kp upon r cube. This is its magnitude, and its unit vector, because its direction is along from minus q to plus q, this is along the dipole moment. So in this direction, if our unit vector is p cap, then we can write E axial is equal to 2 kp upon r cube multiplied by p cap. This is basically, or we can also write in vector form E axial is equal to 2 kp upon r cube. This is the p vector. So this is the vector form of electric field intensity at a point on axial line due to electric dipole. तो यहां से अपन एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि किसी भी सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था, वो अपने पास जो E की वैल्यू आई थी सिंगल आइसोलेटेड अगर पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पे जो वैल्यू आई थी E की, दैट इज KQ अपॉन r स्क्वायर, और वी कैन सी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. बट इफ वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उससे अगर r सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है, तो यहां पे जो E की वैल्यू आती है 2 kp अपॉन r क्यूब, और वी कैन सी दिस E is inversely proportional to cube of the distance between center of dipole and point.
So this is not inversely proportional to r square, it is inversely proportional to cube of r. Okay, so this is the basic difference between electric field intensity due to a single isolated charge, and this is electric field intensity due to an electric dipole. Okay, so this is the final derivation we have done, and in next video we will derive the electric field intensity at a point on equatorial line due to electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है कि पॉइंट चार्जेस की वजह से अपन सेपरेट करके और उसका वेक्टर सम कैलकुलेट किया है. ओके.